السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹینس، یعنی جملے کیسے بنتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے، سینٹینس بنانے کے کیا طریقے ہیں، کون کون سے پیٹرن ہیں، سبجیکٹ، سبجیکٹ فریز، سبجیکٹ کمپلیمنٹ اور آبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہوتے ہیں۔ سینٹینسز کی بناوٹ کے حساب سے فریز اور کلاز کیا ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ جب ہم کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو ورڈز اور سینٹینس استعمال کرتے ہیں۔ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے کچھ معنی ہوں سینٹینس کہلاتا ہے۔ سینٹینس کے معنی جب ہی نکل سکتے ہیں جب ورڈز ایک خاص ترتیب میں ہوں۔ الفاظ کا یہ گروپ دیکھیں: نے، میں، کئی، اسے، دنوں، دیکھا ہے، نہیں سے۔ یہ الفاظ کا ایک بے ترتیب مجموعہ ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اگر انہی الفاظ کو صحیح ترتیب میں رکھا جائے تو یہ ایک بامعنی جملہ بن جائے گا، جیسے میں نے اسے کئی دنوں سے نہیں دیکھا ہے۔ اب یہ جملہ مکمل مفہوم دے رہا ہے۔ انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ انگلش الفاظ کا یہ گروپ دیکھیں: him not I seen many for days have۔ یہ الفاظ کا ایک گروپ تو ضرور ہے مگر بے معنی۔ صحیح ترتیب میں رکھنے سے یہ جملہ اس طرح ہو جائے گا: I have not seen him for many days۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملوں کے بامعنی ہونے کے لیے ان کا ایک خاص ترتیب میں ہونا ضروری ہے۔ یہ خاص ترتیب آخر ہے کیا؟ یہی وہ راز ہے جو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بیڑا پار ہے، یعنی آپ کو صحیح انگلش بولنی اور لکھنی آ جائے گی۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس راز کو جاننے کی، یعنی الفاظ کو صحیح ترتیب میں کیسے رکھا جائے۔ ہر زبان میں جملوں کو ترتیب میں رکھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ انگلش کا بھی جملوں کو بامعنی ترتیب میں رکھنے کا اپنا طریقہ ہے، جسے گرامر کہتے ہیں۔ گرامر کیا ہے؟ جملوں میں الفاظ کو صحیح جگہ پر رکھ کر جوڑنے کے عمل، الفاظ کی اقسام اور الفاظ کے گروپ جو جملے بناتے ہیں کے بارے میں جاننے کے عمل کو گرامر کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگلش میں ہر جملے کے پہلے ورڈ کا پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کیپٹل اور کانسوننٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جملے کے آخر میں فل اسٹاپ لگتا ہے۔ پنکچویشن پر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک جملہ کچھ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر جملے کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ جملے کے حصے مختلف طرز یعنی پیٹرن سے جوڑے جاتے ہیں، جن میں یہ پیٹرن عام ہیں: سبجیکٹ پلس ورب، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، سبجیکٹ پلس ورب پلس ایڈجیکٹو، سبجیکٹ پلس ورب پلس ایڈورب، سبجیکٹ پلس ورب پلس ناؤن۔ ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے سبجیکٹ پلس ورب کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ انگلش میں ایک چھوٹا جملہ دو حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ مثالیں دیکھیں: آئی واک، شی ریڈس، شکیل از گوئنگ، کیچ ہیز بین ٹیکن۔ یہ چاروں جملے دو حصوں یعنی سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہیں۔ انگلش میں بیانیہ جملے جنہیں ڈیکلریٹو یا افرمیٹو سینٹینسز کہتے ہیں، عام طور پر سبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ انگلش میں 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر افرمیٹو سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جملے میں ایکشن کرنے والا ناؤن یا پروناؤن سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ جملہ اس ہی کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ جملے کا ٹاپک ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر جملے کے شروع میں آتا ہے۔ ابھی بیان کیے گئے چاروں جملوں میں شروع کا پہلا لفظ جو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے جملے کا سبجیکٹ ہے۔ سبجیکٹ ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ ان جملوں میں آئی، شی، شکیل اور کیچ سبجیکٹ ہیں۔ ورب جملے کا ایکشن بتاتا ہے۔ ابھی بیان کیے گئے جملوں میں سبجیکٹ کے بعد والا لفظ یا الفاظ ورب ہیں۔ انہیں
रेड कलर में दिखाया गया है। वर्ब एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर दी गई मिसालों में आप देख सकते हैं कि वर्ब एक से लेकर 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी हिस्से से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सही जुमले बनाने के लिए इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना ज़रूरी है। अगर आप इनको जाने बगैर जुमले बनाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन के करीब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं। आप इस लिंक पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर तमाम वीडियोस देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेज़ी में ये पैटर्न सबसे ज़्यादा आम है। ये मिसालें देखें: असलम इज़ रीडिंग ए बुक, खालिद प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, शी रोट ए लेटर विद पेंसिल। पहले सब्जेक्ट आता है जो इन मिसालों में ब्लू कलर में दिखाया गया है, फिर वर्ब आता है जो रेड कलर में दिखाया गया है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। इन जुमलों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक इजाफा किया जा सकता है। जुमलों में ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी होता है। एक्शन वसूल करने वाला वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन होता है जुमले का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकते हैं। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं। बराह रास्त यानी डायरेक्ट एक्शन वसूल करने वाले वर्ड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए वसूल होने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसालों से समझते हैं। ऊपर दी गई मिसालों पर दोबारा गौर करते हैं। असलम इज़ रीडिंग ए बुक, खालिद प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, शी रोट ए लेटर विद पेंसिल। पहला जुमला है असलम इज़ रीडिंग ए बुक, जिसके मायने हैं असलम किताब पढ़ रहा है। इस जुमले में असलम सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग एक वर्ब है। क्या पढ़ रहा है? बुक, यानी बुक एक्शन वसूल कर रही है, इसलिए बुक एक ऑब्जेक्ट है। दूसरे जुमले में 2 ऑब्जेक्ट हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। दोनों डायरेक्टली एक्शन वसूल कर रहे हैं, इसलिए दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तीसरा जुमला है शी रोट ए लेटर विद पेंसिल, जिसका मतलब है उसने पेंसिल से एक खत लिखा। आप समझ ही गए होंगे, इस जुमले में शी एक सब्जेक्ट है, रोट एक वर्ब है। एक्शन कौन वसूल कर रहा है? लेटर। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेटर किससे लिखा? एक पेंसिल से, तो पेंसिल एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इस पैटर्न में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर एडजेक्टिव आता है। मिसालें देखें: ही इज़ हैंडसम, शी इज़ ब्यूटीफुल, अहमद इज़ ए टॉल बॉय। इन तीनों सेंटेंसेस में आखिर में ऑब्जेक्ट के बजाय एडजेक्टिव आए हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। इस पैटर्न में आखिर में एडवर्ब आता है। मिसालें देखें: शकील वॉकड अवे, ही रन्स फास्ट, शी रैन क्विकली डाउन द पाथ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। इस पैटर्न में आखिर में नाउन आता है। मिसालें देखें: अहमद इज़ ए प्रोफेसर, कराची इज़ ए बिग सिटी, इंडस रिवर इज़ द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान। अभी तक मिसालों में जो सेंटेंसेस हमने देखे हैं वो बहुत कम अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें पहचानना बहुत आसान है। आपका वास्ता
ऐसे बेशुमार जुमलों से पढ़ेगा जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होंगे, और हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पहचानने में दुश्वारी हो। एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल सब्जेक्ट को सब्जेक्ट फ्रेज कहते हैं। अंग्रेज़ी में एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल सब्जेक्ट अक्सर इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट हायर मार्क्स, ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक द एरोप्लेन। इन जुमलों में सब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। इन्हें ग्रीन कलर में दिखाया गया है। जिन जुमलों में वर्ब का काम एक्शन दिखाना नहीं होता और वर्ब एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये मिसालें देखें। इन जुमलों में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ब्लू कलर में दिखाया गया है। शी बिकेम ए सिंगर इन 2020। वहीद इज ए मोटर मैकेनिक। दे बोथ वर फास्ट फ्रेंड्स। याद रखिए, सब्जेक्ट फ्रेज के तमाम वर्ड्स एक साथ होते हैं और जुमले के शुरू में आते हैं, जबकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट से भी कंफ्यूज न करें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ब के बाद आता है जो एक्शन का इजहार नहीं करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट एक्शन दिखाने वाले वर्ब के बाद आता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद बताता है और ऑब्जेक्ट के फौरी बाद आता है। इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शनाख्त करने वाला कोई शख्स या चीज होता है। ये मिसालें देखें। आइसक्रीम मेक्स चिल्ड्रेन हैप्पी। दे नेम्ड द बॉय एहतिशाम। नीलम पेंटेड हर नेल्स पर्पल। इन जुमलों में ऑब्जेक्ट, जो ग्रीन कलर में है, के फौरी बाद आने वाले अल्फाज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं और येलो कलर में दिखाए गए हैं। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जुमले के ऑब्जेक्ट की मजीद तशरीह कर रहे हैं। जुमलों में प्रीपोजिशन और उससे मुताल्लिक नाउन तक के अल्फाज प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। इनका इंग्लिश जुमलों में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर जुमलों के आखिर में आते हैं। ये मिसालें देखें। ही पुट द पेन ऑन द टेबल। अहमद वेंट टू द मार्केट। इन जुमलों में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस अंडरलाइन करके दिखाए गए हैं। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसका कुछ मतलब निकलता हो फ्रेज कहलाता है। जैसे अभी प्रीपोजिशनल फ्रेज का तज़किरा हुआ है। इससे कुछ देर पहले सब्जेक्ट फ्रेज का जिक्र हुआ था। सब्जेक्ट फ्रेज में हमने ये फ्रेज देखे थे, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमने ये फ्रेज देखे थे, ऑन द टेबल, टू द मार्केट। जब वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है तो वर्बल फ्रेज कहलाता है। इसी तरह इंग्लिश में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और कई दूसरे किस्म के फ्रेज इस्तेमाल होते हैं। जुमले छोटे भी होते हैं और बड़े भी। छोटे से छोटा जुमला कम से कम एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो मुकम्मिल मफहूम दे रहा हो और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, क्लॉज कहलाता है। ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ एक क्लॉज होती है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। मिसालें देखें। आई रिफ्यूज। ही इज प्लेइंग। आई कैन सी हिम। इट वॉज ए नाइस मूवी। जुमलों में अक्सर एक से ज़्यादा क्लॉजेज इस्तेमाल होती हैं। इनकी दो किस्में होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसी क्लॉज जो एक मुकम्मिल मफहूम पेश करे और जिसे जुमला बनाने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत न हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। ये अपने तौर पर एक मुकम्मिल सेंटेंस होती हैं, जैसे कि अभी बयान की गई मिसालें। ऐसी क्लॉजेस जिन्हें मुकम्मिल मफहूम देने के लिए दूसरी क्लॉजेस की मदद की ज़रूरत हो और अपने तौर पर सेंटेंस न बना सकें, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं। मिसालें देखें। आई विल गो टू ऑफिस इफ इट डजेंट रेन एनी मोर।
Ejaz will pass his examination provided he works hard. Unless he gets a visa, Rustam cannot go to Germany. ये तीनों सेंटेंसेस दो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज अंडरलाइन के बगैर है और डिपेंडेंट क्लॉज को अंडरलाइन किया गया है। इन तीनों सेंटेंसेस से अगर डिपेंडेंट क्लॉज को निकाल दिया जाए तो जुमले इस तरह बन जाएंगे। आई विल गो टू ऑफिस, एजाज विल पास हिज एग्जामिनेशन, रुस्तम कैन नॉट गो टू जर्मनी। ये जुमले अब भी मुकम्मिल मानी दे रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। अब आप इन जुमलों की अंडरलाइन की हुई क्लॉजेस पढ़ें। इफ इट डजंट रेन एनी मोर, प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही गेट्स ए वीज़ा। साफ लग रहा है कि ये नामुकम्मिल जुमले हैं। इन जुमलों के शुरू के अल्फाज इफ़, प्रोवाइडेड, अनलेस बता रहे हैं कि जुमले के कुछ और अल्फाज भी हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाती हैं। साख्त के लिहाज से सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इन पर तफसीली गुफ्तगू हम एक अलग वीडियो में करेंगे। पर्पस के लिहाज से सेंटेंसेस की ये 5 किस्में होती हैं: एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन पर भी तफसीली गुफ्तगू हम एक अलग वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से सेंटेंसेस के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा कि ये कैसे बनते हैं, इनकी कितनी किस्में हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।